नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चले रुक कर लेते हैं भोपाल की खबर की ओर, जहां विश्व मौसम विज्ञान दिवस के अवसर पर भोपाल स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने मौसम के महत्व और सटीक पूर्वानुमान की भूमिका पर जोर दिया। 23 मार्च को मनाए जाने वाले इस दिवस पर भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के निदेशक एक सिंह ने कहा कि मौसम का प्रभाव केवल मनुष्य पर ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं और पर्यावरण पर पड़ता है। उन्होंने बताया कि नई तकनीकों के कारण अब मौसम पूर्वानुमान पहले की तुलना में अधिक सटीक और प्रभावी हो गया है। इस वर्ष के थीम आज का अवलोकन कल की सुरक्षा पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अत्याधुनिक उपकरणों और तकनीकों के माध्यम से समय पर सटीक जानकारी उपलब्ध करा रहा है, जिससे आपदा प्रबंधन और आम जनजीवन को सुरक्षित बनाने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि विभाग की प्राथमिकता है कि मौसम से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी समय पर आम जनता तक पहुंचे, ताकि लोग सतर्क रहकर अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा कर सके। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का उद्देश्य केवल पूर्वानुमान देना ही नहीं बल्कि समाज को जागरूक और सुरक्षित भी बनाना है। इस खास खबर के लिए भोपाल से संवाददाता MG सरवर की रिपोर्ट। डायरेक्टर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भोपाल रीजन डॉक्टर AK सिंह सर, meteorological day, what is the significance? See, you know very well that we are talking about such a phenomenon on which nobody is having any control. Right. That like weather, मौसम, इसको हिंदी में मौसम बोलते हैं, and in English weather. This is not having any boundary as such. So we are talking about a science on which nobody is having control, but it affects everybody. Everybody. Yeah, that is the thing, irrespective of your status. विशेष कर देखा जाए कि इंडिया के संदर्भ में जहाँ तरह तरह के मौसम है वहाँ और भी ज़्यादा टिपिकल होता होगा। Very good. Yes, obviously. It is valid for each and every species, whether it is living or non-living. आप जैसे कि if you are going to start some project also, first of all you will be asking what is the weather. Suppose करिए कि आप कोई भी project design कर रहे हैं, जैसे you are going to construct your home only, तो first of all you will assume, you will see what is the condition of the weather there, whether it is feasible to do the work or not. That you will be. If you are going to construct any नाला, तो सबसे पहले आप यही देखेंगे कि what should be the catchment area of that नाला. So suppose suppose today you are in Bhopal and tomorrow you have to go to Delhi. You will be first thing I say what is the condition? मौसम कैसा है. So this is the prime thing which affects everybody, but nobody is having any control over this. So everybody was knowing this thing, that whether it's such a phenomenon which affects everybody, but nobody is having any control over this. So it was visualized by our past persons, and ultimately in 1873, mind it, 1873, it was recognized that there is a need for such a organization which will share the weather data with among themselves, because it might happen, like I'll give you some example. Like in the case of India, suppose I am reading temperature at 19.3, but if you go to Pakistan, they will be reading in their own language. If you go to Russia, they will be reading in their own language. If you go to Egypt, they will be reading in their own language. Okay, so a need arises how to share this weather data in such a uniform manner so that it can be analyzed properly. So basically on this theme only in 1873 IMO, International Meteorological Organization, was established. And later on, when the civilization progressed, when the science progressed, when the technology progressed, and when the UNO came into picture, so it was visualized in 1950 that it should be replaced by WMO, World Meteorological Organizations. It was conceptualized in 1915. इंडिया के बारे में अच्छी बात ये भी है कि जैसा आपने बताया कि 1873 में इस तरह की जरूरत महसूस हुई और 1875 में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की इस्टेब्लिश हुई। एग्जैक्टली हाँ, इट इज दिस वाज एस्टेब्लिश. तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि 1951 में 23 मार्च को आज ही के दिन ये किया गया कि अब ये वर्ल्ड लेवल पर सेलिब्रेट किया जाएगा WMO डे, क्योंकि वेदर की कोई बाउंड्री नहीं होती है. इसलिए भी सेलिब्रेट, जैसे इस बार का थीम है ऑब्जर्व टुडे टू प्रोटेक्ट टुमारो. बिल्कुल, हर एक साल अब एक जो थीम जो है दिया जाता है जिस पर कि आपको काम नहीं करना है, उस पर विचार करना है, उसके बारे में लोगों में जागरूकता लाना है. तो इस बार हम लोग ने दिया ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो. आज जो सिचुएशंस आप देख रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, लोग अब वेदर के चलते परेशान हो चुके हैं. आप लोग खुद इस बात को रियलाइज कर रहे हैं, भोपाल के रहने वाले हैं,
अरे यार अप्रैल में कैसी गर्मी रहने वाली है, हो सकता है हाड़ तोड़ गर्मी आ जाए, टेम्परेचर आपको 47-48 तक पहुंच जाए, तो सबसे पहले आपको उस वेदर के लिए तैयार रहना है। जनरल पब्लिक के लिए भी एक तरह से अफेक्ट करता है weather। बिल्कुल, जनरल पब्लिक ही नहीं, इवन सपोज करिए, मैं आपको एक सिंपल, जनरल पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए, जैसे जैसे आपको टेम्परेचर बढ़ेगा, रास्ते में जो कुत्ते जो हैं वो भी परेशान होंगे, डॉग बाइट, हाँ डॉग बाइट के केस आपको बढ़ जाएंगे, जो मतलब कि ये ऑब्वियस है। आप सड़क पर चल रहे हैं, वेदर के चलते जो परेशान हैं, आप दुर्घटना के केसेज आपको बढ़ जाएंगे। आप इसमें जाएंगे, ये हॉस्पिटल्स में जाएंगे, आप देखेंगे कि तरह तरह के बुखार वाले मरीज आपको बढ़े हुए हैं, आप पानी की किल्लत हो जाएगी। अच्छा यही होगा कि जैसे आपका डिपार्टमेंट से जो ऑब्जर्वेशन देता है, जिस तरह की फोरकास्ट करता है, तो उससे प्रिकॉशनरी मेजर लिए जाए। हाँ, हम प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं, सावधानी बरत सकते हैं। तो इसीलिए थीम इस बार दिया गया है, ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो। भाई हम लोग जो आज तक वेदर के साथ मजाक करते आए हैं, हम लोगों ने वेदर को पहचाना नहीं है, वेदर को मजाक करते आए हैं, तो बेहतर है कि हम ऑब्जर्व कर दें कि टुडे और कल क्या होने वाला है। लेकिन जैसे कि मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप अपना बचपन याद करिए। बचपन के दिनों में आप याद करते होंगे कि कुएं का पानी हम खुलेआम पी सकते थे, लेकिन क्या ये आज के डेट में संभव है? नहीं संभव है, बिल्कुल नहीं संभव है। तो ये भी वेदर का एक वेदर के रूप में अफेक्ट, हाइड्रोलॉजी के रूप में आ रहा है। इसको किसने अफेक्टेड किया, मतलब किसने प्रभावित किया? हम और आप जैसे लोगों ने। जिस तरह से देखा जाए कि एआई का प्रचलन बढ़ रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उससे भी फोरकास्टिंग में आप लोगों को आसानी हुई। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आपको लेटेस्ट आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, हम उसको एडप्ट करते हैं। लेकिन एआई हमारे लिए एक सपोर्टिंग टूल है। हाँ, सपोर्टिंग टूल हम उसको यूज करेंगे वेदर फोरकास्टिंग के लिए, लेकिन जहां तक इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन, उसको आप बिल्कुल नहीं रोक सकते, क्योंकि एआई से सपोर्टिंग टूल के रूप में आ सकता है, डाटा एनालाइज करते हैं, बट अल्टीमेटली साइंस और टेक्नोलॉजी वो हमारे परसेप्शन पर आपकी भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज कहा जाए छोटे किसान भी, इंटीरियर में भी जो किसान है, उसके पास वेदर फोरकास्टिंग पहुंच रही है, उस हिसाब से वो अपना प्रोडक्ट्स को, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ा पा रहा है। अब हम जो है मतलब कि सारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। हमारी कोशिश है कि जो लोएस्ट पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, वहां तक हमारी इंफॉर्मेशन एक रिक्शा पुलर तक पहुंचे। एक रिक्शा पुलर भी जब रिक्शा खींचते जाता है तो सबसे पहले वो देखे मौसम कैसा है, तभी उसकी कमाई भी बढ़ेगी। यदि किसान है, उसको डिसाइड करना है कि खेत में पानी देना है या नहीं देना है, तो 15 दिन पहले डिसाइड कर ले कि किस तरीका का वेदर होने वाला है। और एक समृद्ध समाज के निर्माण में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो भूमिका है, बिल्कुल डायरेक्टर ए के सिंह, मुझे लगता है अपनी भूमिका का अच्छे से निर्वहन करता रहेगा। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।